लास्ट में चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ से अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो 3 मार्कर, 6 मार्कर और 8 मार्कर इस चैप्टर के तो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। 1 मार्कर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, जो मैं चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ उसके बीच में 1 मार्कर सारे पिक करती हूँ, तो हम कोशिश करेंगे 1 मार्कर मैक्सिमम पिक करें, पर 3 मार्कर, 6 मार्कर और 8 मार्कर इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, describe how the British celebrated those who believed saved the English and repressed the rebels during the revolt of 1857। इसका आंसर है पेज नंबर 307 पे। ठीक है, इसके अंदर करेंगे आप, British celebrated those who believed saved the English and repressed the rebels during revolt of 1857। इसमें आप पेंटिंग्स का नाम देंगे। पेज नंबर 307 से मार्क करना, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स है, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इसके अंदर पहला पॉइंट है, ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस दैट वर मेंट टू प्रोवोक। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे उन लोगों को, किस तरह से उन चीज़ों को प्रमोट किया, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करा जिसके द्वारा वो ये मानते हैं कि हम अंग्रेजों जो है वो गलत गंदे हिंदुस्तानियों से बच गए, 1857 के रिवोल्ट से हम बच गए, तो हमें जो भी बचाया जिन अंग्रेजों ने, उन अंग्रेजों को कैसे सेलिब्रेट किया गया। तो ब्रिटिश ने, काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स ने पेंटिंग्स निकाली, इमेजेस निकाली। तो सबसे पहली इमेज की बात हो रही है पेज 307 पे, ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस that were meant to provoke a range of different emotions and reactions. Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. First point. Second point, relief of Lucknow painted by Thomas Jones Barker in 1859 is an example of this type. When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in the heavily fortified residency. Lawrence was killed, but the residency continued to be defended under the command of Colonel Inglis. Third point, on 25th September, James Outram and Henry Havelock arrived, cut through the rebel forces and reinforced the British garrison. Then Colonel Campbell was appointed as the new commander of British forces in India, came with his forces and rescued the besieged garrison. ये third point था. Next paragraph, fourth point. Barker painting celebrate the moment of Campbell entry. At the center of the canvas, British hero Campbell entered, Outram and Havelock. ये 4 points आप लिख देंगे. ठीक है. Next question है, visual images and literature as much as of the writing of history has helped in keeping alive the memory of revolt of 1857। तो काफ़ी सारी विजुअल इमेजेस और लिटरेचर हमारे पास है जिससे हम 1857 के रिवोल्ट को याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है पेज 307 पे ही, पेज 307 पे इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सेकंड पैराग्राफ से करना है, we have very few records on the rebels point of view. There are few rebel proclamation and notification, also some letters that rebel leaders wrote, but historians till now have continued to discuss rebel action primarily through the accounts of British, written by British. First point, कि हमारे को हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम डेटा है हमारे पास 1857 के रिवोल्ट का। मेजर जो डेटा है वो अंग्रेजों की सरकार द्वारा लिखा गया ही डेटा, रिटन रिकॉर्ड है 1857 के रिवोल्ट का। Second point, official accounts of course about colonial administrator and military men left their version in letter, diaries, autobiography and official histories। यहाँ तक मार्क करना, फिर 3 लाइनें छोड़ के लिखा है थर्ड पॉइंट, many of these now have been collected in a set of volume on mutiny records tell us about the fears and anxiety of officials and the perception of the rebels। यहाँ तक मार्क 3 points। पेज 307 सेकेंड पैराग्राफ की 7th 8th लाइन में लिखा होगा many of these have now been collected। ठीक है,
तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन करवा दिया है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रूमर्स इन 1857 बिगेन टू मेक सेंस। तुम्हें मुस्कान मिल गया तो वाला आंसर, सेकंड वाला, थर्ड पॉइंट। मुस्कान मिल गया था? मुस्कान। Now third question. The rumors of 1857 began to make sense when seen in the context of policy pursued by the British from 1820. Support your answer with evidence. इसमें आ जाएंगे पेज नंबर, चाहना सेंटर कब से आओगे? चाहना सेंटर कब से आओगे? हम्म, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर पेज 295 से, कि लोग जो हैं क्यों मानने लग गए थे इन र्यूमर्स को, हमें ये लिखना है। तो पेज 295 सेकंड पैराग्राफ, the rumors in 1857 begins to make sense when seen in the context of policy the British pursued from the late 1820s. First point, from that time, under the leadership of Governor General Lord William Bentinck, the British adopted policy aims at reforming Indian society by introducing Western education, Western idea, and Western institution. With the cooperation of section of Indian society, they set up English medium school, colleges, and universities, and taught Western sciences and liberal arts. The British established law. Second point, फिर ब्रिटिशर्स ने नए लॉज और कस्टम बना दिए थे, लाइक सती प्रथा को अबॉलिश करना, रिमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। थर्ड पॉइंट, on a variety of pleas like misgovernment and refusal to recognize adoption, the British annexed not only Awadh but many other kingdoms and principalities like Jhansi and Satara. Fourth point, the British introduced their own system of administration, their own laws, their own methods of land settlement, land revenue collection. The cumulative impact of all this on the people of North India was profound. Fifth point, it seemed to the people that all they cherished and held sacred, from king and social religious customs and the pattern of land holding and revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien, and oppressive. Next point, this perception was aggravated by the activities of Christian missionaries. In such a situation of uncertainty, rumor spreads with remarkable swiftness. इसमें से कोई भी आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, 3 मार्कर का ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 4 नहीं करना है फिलहाल, मैं अलग से मैपिंग में करवाऊंगी। क्वेश्चन 5 भी मैं मैपिंग में करवाऊंगी, आएगा। यहाँ से मैपिंग आती है एरिया और सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, वो सारे मैं करवाऊंगी। देन क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है कि 1857 का ये जो रिवोल्ट था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर कैसे काम कर रहा था। तो इसका आप विजन ऑफ यूनिटी पे आएंगे, पेज नंबर 301 पे। क्वेश्चन 6 पेज 301। हाँ, ये सारी मैपिंग अलग से उठाऊंगी जब ये चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे, फिर आपका प्योर 3-4 क्लासेस सिर्फ मैपिंग की है। ठीक है, उसमें सिर्फ मैपिंग चलेंगी हमारी, मैपिंग थोड़ा फन वे में होता है इधर, तो मैपिंग हम इजी वे में अलग से करेंगे। ठीक है, देन 301 पेज 1857 का रिवोल्ट कैसे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए किया गया था, विजन ऑफ यूनिटी पेज 301। फर्स्ट पॉइंट, the rebel proclamation in 1857 repeatedly appealed to all section of the population irrespective of their caste and creed। जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें सारे लोगों को इकट्ठा होने को बोला गया था, उनकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इकट्ठा होना था। Many of these proclamations were issued by Muslim princes or in their names, but even these took care of to address the sentiment of Hindus। ये first point पूरा है। Second point, the rebellion was seen as a war। ये जो 1857 का रिवॉल्ट है इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखा गया था, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों को पास इक्वल पाने के लिए और इक्वल ही खोने के लिए था। The Ishtihar harked back to the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of different communities under Mughal rule। ये second point था। Third point, the proclamation was the issue under the name of Bahadur Shah to appeal the Muslim community, whereas Muhammad and Mahavir for both Hindu and Muslims। Fourth point,
remarkable that during the uprising, religious division between Hindu and Muslim were hardly noticeable. जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब हिंदू और मुसलमान आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि किसी तरीके का डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, एक्सेप्ट फॉर द ड्रेसिंग एंड क्लोथ्स। एक बार ऐसा हुआ कि बरेली में उत्तर प्रदेश के अंदर 1857 के रिवोल्ट के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को 50,000 रुपए दिए कि तुम चुप बैठ जाओ और मुसलमानों का साथ मत दो, पर हिंदुओं ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करता है। यहाँ से भी आपको 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। पहले 4 मार्क्स होता था, लास्ट ईयर 2020 से ये 3 मार्कर के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गए हैं। क्वेश्चन 7 अगेन मैपिंग क्वेश्चन छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 कि वाइट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा, जो आर्मी वाले वाइट ऑफिसर्स थे किस तरह से उनका एटीट्यूड 1820 से और 1840 में कैसे बदलाव आ गया, वो सारा आपको लिखना है। ये आपका बनेगा पेज नंबर 299, पेज 299। इसका लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, लास्ट 2 पैराग्राफ 299 के। The relationship of sepoys with their superior white officer underwent a significant change in the year preceding 1857 का रिवोल्ट। और 1820 तक जो रिश्ता बहुत अच्छा था, 1840 तक आते आते बहुत डिटोरेट हो गया था। 1820 में देखा जाता था कि जो वाइट ऑफिसर्स थे और जो हिंदू ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स थे, उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। वो साथ में लेजर एक्टिविटीज करते थे, रेसल करते थे, घूमने जाते थे, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते थे। दोनों को अंग्रेजी सरकार की जो आर्मी वाले थे उनको हिंदुस्तानी बहुत अच्छी आती थी, हिंदुस्तानी कस्टम, हिंदुस्तानी कल्चर, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज उनको थी। और ये काफ़ी डिसिप्लिन फादर फिगर की तरह काम करते थे। इनकी जो इंडियन आर्मी वाले थे, इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग इनके साथ थी। 1840s तक आते आते ये रिश्ता एकदम चेंज हो गया। अब अंग्रेजी सरकार के जो आर्मी वाले लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर देख रहे हैं, हिंदुस्तानी सिपाहियों को वो इंफीरियर ही ट्रीट कर रहे हैं, उनको जो है अपने आप को माई बाप समझ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, हिंदुस्तानियों को अब्यूज कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, इल ट्रीट कर रहे हैं, ट्रस्ट की जगह सस्पिशन घुस गया है अब। तो इस वजह से और साथ में ग्रीस कार्टेज मुंह से छीलने वाला कॉन्सेप्ट आया, इसके आते साथ ही सारा जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नवाब वाजिद अली शाह, पेज नंबर 297। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी, यहाँ से लाइन्स उठाई गई हैं पेज 296 से, 296 297। 296 लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी में चौथी लाइन से देखेंगे, यहाँ से पैराग्राफ उठाया गया है। नवाब वाजिद अली शाह वॉज dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned। ये सब कुछ आपको पैराग्राफ के अंदर लिख के दिया गया है। नाउ अब आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड पीपल bemoan and show an emotional upheaval at, explain। ठीक है, तो लोग जो है क्यों रो रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, इसके दो मुख्य कारण थे। इसके दो मुख्य कारण आप यहाँ से लिखोगे। पेज नंबर 297, सेकेंड आपका फिरंगी राज से ऊपर वाले पैराग्राफ में। द इमोशनल अपहीवल वाज एग्रीवेटेड बाय इमीडिएट मटेरियल लॉसेस, क्योंकि बहुत लोगों का काम चला गया था, हर वो इंसान जिसको राजा के दरबार में काम मिला हुआ था उसकी नौकरी चली गई थी। द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट एंड इट्स कल्चर। There's a whole range of people, musician, dancer, poets, artisan, cook, retainer and administrative officials, इनकी नौकरियां चली गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा रो रहे थे। ठीक है, what human values are revealed in the above passage। इसमें आप लिख सकते हो ह्यूमन वैल्यूज में लव फॉर द किंग, लव एंड लॉयलिटी फॉर द किंग, इमोशनल पेन, सेकेंड पॉइंट लिख दोगे सेकेंड ह्यूमन वैल्यू का, इमोशनल पेन ऑफ सिटीजन्स, ये दो ह्यूमन वैल्यूज लिखोगे।
क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज आपका यूनिटी वाला कहाँ पे है क्वेश्चन? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द जमींदार्स इन बंगाल। यहाँ से आपको नहीं करना है, ये इस चैप्टर का नहीं है, कट कर दो। देन read the following passage. The nationalist movement in 16th century drew inspiration from the event of 1857. The whole वाला कहाँ से लिया गया है? Imagination Oval. It was celebrated as first war of independence with all section of people. क्वेश्चन नंबर 12 में लास्ट का दिख रहा है। पेज नंबर 313, क्वेश्चन 12 पेज 313। The nationalist movement in the 20th century drew inspiration from the event of 1857. इसके अंदर सेकंड पैराग्राफ से आप करेंगे। Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857. Second point, the leaders in the revolt were presented as heroic figures leading the country into battle, rousing the people to righteous indignation against oppressive imperial rule. Third, Third, heroic poems were written about the valor of the queen who, with a sword in one hand and dreams on the horse in the other, fought the freedom of her motherland. Fourth point, Rani of Jhansi was represented as masculine figure chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting up till her last. एकदम एंड में ये लाइन याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1 मार्कर क्वेश्चन मिल गया। 13 में वर्ड रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव की जगह रिप्रेसिव कर लेना। कि अंग्रेजी सरकार ने किस तरह से 1857 के रिवोल्ट को रिप्रेस किया, उसको कैसे दबाया, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? पेज नंबर 305 पे आ जाइएगा। पेज 305, इसके अंदर आप फर्स्ट पैराग्राफ सॉरी सेकंड पैराग्राफ से करेंगे। बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू कॉन्कर नॉर्थ इंडिया द ब्रिटिश पास अ सीरीज ऑफ लॉ। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ब्रिटिशर्स ने ये 1857 के रिवोल्ट को दबाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ लॉज पास किए थे इंसर्जेंसी को दबाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास करे थे मई और जून में, जैसे मार्शियल लॉ लगाया था जिसमें हर आम ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को, जो हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स थे, उनको हक दे दिया गया था कि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप उसे गोली मार सकते हो, हिंदुस्तानी को आप उन्हें पनिश कर सकते हो, मार सकते हो, जेल में भेजने की जरूरत नहीं। सेकेंड, ब्रिटिशर्स ने फिर सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को और भी स्टेप्स लिए, जैसे कि दिल्ली में सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को इन्होंने कलकत्ता से एक आर्मी मंगाई और एक पंजाब से मंगाई, उन सबको दिल्ली पे अटैक करने को बोला, दिल्ली को अपने अंडर कर लिया। पेज 306, गैंजेटिक प्लेन यूपी बिहार के अंदर इनका जो स्टेप थे बहुत स्लो हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्मी वाले नहीं थे, यहाँ पे आम जनता, तहसीलदार वगैरह जितने भी थे, पेजेंट्स, जमींदार, वो सब इकट्ठे हो गए थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम लगा। लास्ट पैराग्राफ, द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन अ जाइगेंटिक स्केल बट दिस वाज नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट इन यूज इन लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। बड़े बड़े जो जमींदार थे उत्तर प्रदेश के, अंग्रेजी सरकार ने उनको पैसे खिलाए कि वो जो है इस रिवोल्ट से बाहर हो जाए। तो इस तरह से गोली द्वारा और पैसों द्वारा, दोनों के द्वारा उन्होंने जो है सप्रेस करने की कोशिश करी रिवोल्ट को। क्वेश्चन 14 मैपिंग है, छोड़ देना। क्वेश्चन 15 प्रोविजन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पेज नंबर 296। 296 अवध इन रिवोल्ट के फोर्थ लाइन से करना, फोर्थ फिफ्थ लाइन से। द सब्सिडरी अलायंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन अवध
In 1801, by the terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom, and act in accordance with the advice of British resident, who was now to be attached to the court. Deprived of second point, deprived of his armed forces, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order within the kingdom. He could no longer assert control over the rebellious chiefs and talukdars. Third point, in the meantime, the British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. They felt the soil there was good for producing indigo and cotton. The region was ideally located to develop the principal market for Upper India. And fourth point, the takeover of Awadh in 1856 was expected to be completed, a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century ago. Question number 16. How British dispossessed Talukdar of Awadh during 1857 revolt? Page number 298. Page number 298. कि किस तरह से तालुकदार जो थे अवध को उनकी पावर से हटाया गया। फिफ्थ लाइन से देखेंगे 298 की टॉप में, the annexation displaced not just the Nawab and also dispossessed the talukdar of the region. The country of the Awadh was dotted. ये मत लिखना, रीजन के बाद नेक्स्ट 5-7 लाइनें छोड़ने के बाद लिखा है the Britishers were unwilling to tolerate the power of talukdar. Immediately after the annexation, talukdar were disarmed and their forts were destroyed. Second point, the British land revenue policy further undermined the position and authority of talukdar. After annexation, the first British settlement known as summary settlement of 1856 was based on the assumption that talukdar were interloper with no permanent stake in the land. They established their hold over the land forces and fraud. The summary settlement proceeded to remain the talukdar to remove the talukdar as possible wherever as possible. फिर 4 लाइनें छोड़ के लिखा है the talukdar of southern Awadh were the hardest hit and some lost more than half of the total number of villages that they previously held. And fourth point, British land revenue officer believed that removing talukdar where they will be able to settle the land with the actual owners of the soil, thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing the revenue returns of the state. ये सब आप लिखोगे। आपको मैंने फोटो भेजी थी इस चैप्टर की जो मैंने पूरा अंडरलाइन करा हुआ है, पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, है मुस्कान? फोटो है ना? तो मैंने ये सारे पॉइंटर्स बना के दिए हुए हैं उन फोटोग्राफ्स में, आप अपना वैसे का वैसा अपने भी पॉइंटर्स बना लेना, सारे आंसर्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन 17 रहने को मैपिंग है। क्वेश्चन 18 इज सेम एज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 18 सेम एज क्वेश्चन 8, लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज जरूर देख लेना, लैंग्वेज के साथ खेलती है एनसीईआरटी सीबीएसई। देन क्वेश्चन नंबर 19, सब्सिडरी अलायंस को एक्सप्लेन करो। इसका आंसर है पेज नंबर 296, बॉक्स बना हुआ है ग्रीन कलर का, सब्सिडरी अलायंस का, इसका इस साल भी आने के चांसेस हैं। पेज 296 सब्सिडरी अलायंस का बॉक्स बना होगा एक ग्रीन कलर का, वो लिखना है आपको। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिन हाउ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ अवध। ठीक है, इसके अंदर है डलहौजी की नए रूल्स। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। ये आपको लिखना है द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ बॉडी, पेज नंबर 296, ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, ये उसकी जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, उस वजह से लोग बहुत डिससैटिस्फाइड हो गए थे अवध में। तो आपको लिखना है लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशन क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन इन ऑल एरियाज एंड प्रिंसिपैलिटीज दैट वर एनेक्स्ड बट नोवेयर मोर देन सो द किंग ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध वाज इन प्लेस।
हेयर नवाब वाजिद अली शाह, उसको उसकी पावर से हटा दिया गया था, उसे कलकत्ता भेज दिया गया था। ऐसा माना जा रहा था ब्रिटिश सरकार की ये जो राजा है ये ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, और इन्होंने इसका लखनऊ छुड़वा के इसको कलकत्ता भिजवा दिया। लोग इसके पीछे लखनऊ से कानपुर तक गाने गाते हुए रोते हुए गए। फिर बीच की 7-8 लाइनें छोड़ देना और साइड वाले पैराग्राफ पे आ जाना, पेज 297 में। ये अपहीवल इस वजह से भी था क्योंकि नवाब की वजह से लोगों की नौकरियां भी चली गई, जैसी नवाब गया साथ में नौकरी भी चली गई। ये दो पैराग्राफ आपको लिखने हैं, 296 297। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of specific example examine the nature of Indian leadership that emerged against the British revolt। ये 4 मार्क्स का है, मैं आपको 8 मार्क्स के हिसाब से करवा रही हूँ क्योंकि 8 नंबर में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्कर भी आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट इस इलाके का लीडर कौन था, उस इलाके का लीडर कौन था। तो पेज नंबर 292 पे आ जाओ, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। इसके मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, 8 पॉइंटर बना के दे रखे हैं फोटोग्राफ में आपको। सबसे पहले मेरठ से लोग दिल्ली आए, दिल्ली में जो लीडर था वो था बहादुर शाह जफर। फिर कानपुर से जो लीडर था वो था पेशवा बाजीराव टू। फिर आपकी झांसी से लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि खुश नहीं थी पर उसको जबरदस्ती बनाया गया। बिहार से आपका कुंवर सिंह था, बिहार आरा से। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, तो उनके जो बेटे थे ब्रजेश कादर वो आगे लीडर बने। फिर कई जगहों पे जो है तालुकदार नवाब ये सब भी नहीं थे, इनके अलावा भी और आम जनता के लोग भी लीडर्स बने। जैसे मेरठ में एक फकीर था जो घोड़े पे हाथी पे बैठ के आएगा और लोगों को फ्री करा देगा। देन बहुत सारे प्रॉफिट्स भी ये कह रहे थे कि अब अंग्रेजी सरकार का खात्मे का समय आ गया है। जैसे फिर आपका एक गुनू ट्राइबल था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोल ट्राइबल रीजन का जो था, वो वहाँ का ट्राइबल एरिया बंदा था, वो उसका नाम आप लिखोगे गुनू का। तो ये सारे लोग जो थे लीडर्स थे। देन मैंने आपको 2 नाम और लिखवाए थे, शामल उत्तर प्रदेश बरौत से, और मौलवी अहमदुल्ला शाह आपका हैदराबाद से। ये साथ वाले पेज पे 293 1 मार्कर में आ जाएगा। देन क्वेश्चन 22 सेम एज क्वेश्चन 6, 22 सेम एज क्वेश्चन 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केपिंग टू द कंट्री साइड। सेकंड देखती हूँ मैं, एस्केपिंग टू द कंट्री साइड कहाँ पर है आपका। बुक में स्टिकर्स इतने लगे हुए हैं। ये शायद इस चैप्टर का ही नहीं है, ये पार्टीशन का आई थिंक। ये एस्केपिंग टू द कंट्री साइड इस चैप्टर का नहीं है, ये दूसरे चैप्टर का, इसको छोड़ देना फिलहाल। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24 इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, 8 मार्कर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो है राजा के हटाने का, ताल्लुकदार का हटाने का, पेजेंट की खराब करने का काम और सिपॉइज, इन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि अवध के अंदर रिवोल्ट इतना क्यों बढ़ गया। ठीक है, इसका मैं आपको एक फोटो दूंगी, आई सेंड यू नोट्स, इसका मैं नोट्स बना के दूंगी, वो आप लिखोगे। इसके अंदर ये बहुत बड़ा आंसर बनता है, 8 पॉइंटर का मैं बना के दूंगी इसका। ठीक है, क्वेश्चन 24 आई विल गिव यू द आंसर, प्रॉपर नोट्स। क्वेश्चन 25, rumors and prophecies played a part in moving the people into action and during the revolt of 1857। कि क्या क्या rumors थे और लोगों ने क्यों बिलीव कर लिया। इसका आंसर है पेज नंबर 294 295। 294 पे रूमर्स एंड प्रोफेसी की मैंने 4 रूमर्स करवाई हुई हैं, वो आपको करनी है। वाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर 295 पे है।
इसमें भी 4 पॉइंट्स बनवाए हुए हैं, ये आपको करने हैं। क्वेश्चन 26 फिर से मैं दूंगी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 24, उसी का छोटा भाई है। क्वेश्चन 27 सेम एज क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 28 सेम एज क्वेश्चन 16। Question 29 same as 15. Question 30 same as question 19. Question 31 same as (20). Question 31 same as question 20. Question 32 same as question number 6. क्वेश्चन नंबर 24 में इसका आंसर भेजती हूँ आपको भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।